चलिए गाइस शुरू करते हैं फन संडे. ठीक है. We have our new guest here, Shobit. He is a software engineer. Okay. Then Shivam, aka Digital Nomad. Vishal, aka the common pod. And then you Yes. know me, guys. Tectonic Tectonic Talks. talks. We are new. Nice. Yes, still figuring it out. Nice. Yeah. Welcome, Shobit. Thank you. Uh, Great to know you. So let's begin with a little bit about your journey. And first of all, we would like to hear from Ishan that how you guys met. And थोड़ा सा intro दे दो ईशान. And we can do it in like both Hindi and Hindi. So mix कर सकते Okay. हैं, right? So Shobit and I got met with our mutual friend, okay, Abhishek. He used to come to our hometown to, spend his summer vacations. And he's from Dehradun, and we met there. We played together, and then we stay in contact for a long time till now. Like we are always on the phone in a month or 2 months, I guess. We spoke regularly and things about each other, what we are doing, and all those things, and stay connected. And yeah, here and yeah, I will now want to transfer it to Shobit to give his uh, little bit about his himself, how he met, how his experience with me, and then how then we will go like how he is doing in his career, like from where he begins and how he is still keeping with that. Yeah, over Yeah. to you, Shobit. Thank you, Shannon. Hello, everyone. Thank you for Hey, having me. So, my name is Shobit, and as Ishan said, we go back a long time ago, and when we were kids, and we used to play a lot during summers time, and that was our childhood. And similarly, I played similar games at my hometown as well. That is Dehradun, and I hail from Dehradun. So, funny story. I when I said Dehradun, so there is one funny story. So जब हम छोटे होते थे and I just gave my 10th boards, and I was good at studies. You can say that. And at that time, and Dehradun is famous for having summer vacations and river side, pool side. So similarly, I went with one of my friends, and I and we used to scare a lot from my dad. So बहुत डरते थे हम लोग अपने डैड से, मैं और मेरा भाई, एंड हम चुपके से निकल गए. सो 10वीं तक तो ऐसा था कि 8th में सब गेम्स बंद हो गए, तो 9th 10th तो भर रखा था सब कुछ. ठीक है. तो और एक्सपीरियंस भी करना था, व्हेन वी वर गोइंग थ्रू दिस जर्नी, टीनेजर्स, एंड मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो मेरे से बड़े थे, तो दे ऑलरेडी एक्सपीरियंस अलॉट दिस काइंड ऑफ थिंग्स. सो उन्होंने बोला कि चलो तुम भी चलो, एंड आई सेड कि हाँ चलते हैं, जल्दी आ जाएंगे. एंड वी वेंट टू पूल साइड, एंड सो फर्स्ट टाइम आई ड्रिंक आई गॉट अ चांस टू ड्रिंक बियर एट दैट टाइम. कड़वी कड़वी लगती है शुरू में. तो पी तो लिया. आपको उस समय दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई ड्रिंक, एंड फीलिंग क्या होती है आपको कुछ पता ही नहीं है, बिकॉज सेंसेस ठीक है, बस थोड़ा स्लो हो जाता है, बाद में पता चलता है आपको कि यू आर स्लो, एंड एंड ठीक है. हम सब अच्छा चल रहा था, हम घर आए, और मेरे पापा मेरे जैसे ही मेरे को देखा, मैंने सुबह से गया था, जो उन्होंने चप्पल और बेल्ट उठाई. सो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, एंड देन आई वेंट बियॉन्ड. तो 11वीं 12वीं भी अलग किस्से हैं, बट then I got into so in Uttarakhand we have a tier 1 state college. So it is more repetitious than NIT. So NIT Srinagar. So my college was GB Pant College of Agriculture and Technology. So this is one of the largest Asia's agriculture university, and I got into it. So and and अभी मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ. सबको पता नहीं, मतलब ईशान को ऑलरेडी ही नोज अबाउट मी, बट आई नेवर वांटेड टू बी आई नेवर वांटेड अच्छा. आई नेवर वांटेड टू बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. मतलब मैंने ऐसा सुना ही नहीं था, बिकॉज माई फादर यूज टू से कि इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनना है. मैंने कहा ठीक है, आप आपकी मान लेते हैं, बट मेरे को या तो मैं मैकेनिकल करूँगा, या फिर सेकेंड ऑप्शन वुड बी कंप्यूटर्स, बिकॉज फ्रॉम 9 to 12 आई हैव कंप्यूटर्स इन माई
additional subject. So so I hit it, and I only chose two streams. मतलब स्ट्रीम्स बहुत होते हैं व्हेन यू आर इनटू कॉलेज, मतलब आप कॉलेज के लिए अप्लाई करते हो तो आप सब ब्रांचेस के लिए अप्लाई कर देते हो कि एटलीस्ट उसमें चला जाए. बट आई चूज ओनली टू, दैट इज़ अ मैकेनिकल, सेकंड इज़ कंप्यूटर. तो आई गॉट इनटू कंप्यूटर्स, and I am from 2012 batch. So at that point of time, our means our college used to have 40,000 or 50,000 AIEEE rankers, and it started with 20,000. And at that time I have a 35,000. So due to which कंप्यूटर्स मिल गया बट मैकेनिकल नहीं मिल पाया. तो मैंने कहा ठीक है, अब गवर्नमेंट है, एंड पापा ने बोला था कि अगर तुम प्राइवेट जाने तो लोन ले लो, अदरवाइज गेट ऑन विद इट, आई विल पे. मैंने कहा चलो लोन से तो अच्छा है जो पापा ही पे कर रहे हैं तो. एंड इट वॉज अ रेपुटेशियस कॉलेज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड मैं फिर कंप्यूटर से ले ली. सो एंड डेस्टिनी, डेस्टिनी. सो फिर धीरे धीरे क्या होता है कि आपकी काउंसलिंग होती है व्हेन यू गॉट इनटू कॉलेज. सो 1 राउंड हुआ, सेकंड राउंड हुआ, देयर इज अ स्पॉट राउंड वेर यू कैन चेंज योर फील्ड इफ़ यू हैव अ सीट. तो मैकेनिकल में सीट थी. सम ऑफ आवर फ्रेंड्स moved on to a different college, and there is seat vacant. So my friend and my father said कि अभी चाहिए तुम्हें. तो मैंने कहा यार कंप्यूटर भी ठीक है, कर लेते हैं, ठीक है. So I got on with it, and then we started having colleges, hostel time, and then we directly have a placement sessions. So at placement, so that were for computer, actually there was some different companies and different branches. So for us there is TCS, Infosys, and due to our college reputation we have TCS. मतलब सबसे पहली जो आती है फिर उसमें सब लोग अप्लाई कर देते हैं. उसके बाद देखते हैं कि हाँ चलो जो छट जाते हैं देन दे विल गेट ऑन विद दैट. एंड हमारे उसमें रूल था कि अगर एक में बैठ गए तो फिर किसी और में नहीं बैठ सकते. एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी कैन नॉट हम चॉइस नहीं कर सकते. मतलब हमारे इतना वो नहीं था. आज की जनरेशन इफ़ वी कंपेयर देन दे चूज़ company over their work, over their budget, how much they will get. So we don't have to कि हमें ये ऐसा करता है कि एक बार कर लेते हैं then we'll think of it. But if we compare जो हमारी आज की millennial है ना, but what I see in during my days here in at John Deere, so people see how much they're going to pay, what kind of work they want to have, and what is the company like, is a hybrid structure or how it is working. So they search a lot, today's generation. But our generation was like चलो कर रहे हैं कर लो, at least एक होगी, then we will go ahead with GRE, MBAs or GATE. And I have a second option, like I want to go for MBA at that time. So TCS हुआ, हो गया मेरा. And that was a funny story as well, but that we can cover it in later part. But TCS हुआ, then we have a जब एक बार हो जाता है आपका, then we have a parties. क्योंकि वो सेमेस्टर फर्स्ट थर्ड ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर होता है, एंड देन आप ऑलरेडी फाइनल ईयर में चले जाते हो. देन सब आपको पता है कि आपका प्लेसमेंट हो रखा है, बस आपको कॉलेज जाना है नहीं जाना है. एंड फिर आई वाज स्टडिंग फॉर MBA देन. बट फर्स्ट पार्ट में ज़्यादा था मेरा पढ़ने का. बट जब प्लेसमेंट हो जाते तो वो बोल रहे कि इधर चलो, बोल रहे इस ट्रिप में चलो. सो ड्यू टू विच MBA चला गया. देन आई जॉइन TCS इन माई फर्स्ट जॉइनिंग वॉज इन Kerala, and it was during Christmas and New Year, and that was a good time there, and we learned a lot. So in TCS, I respect TCS actually. Why? Because once you get out of college, you don't have enough confidence, you can say. हाँ आप टेक्निकल अच्छे हो अगर जब तक कोई पूछे आपसे, बट उससे पहले आपको प्रेजेंट होना है, राइट. उससे पहले आपको मेल्स लिखने हैं टू रीच आउट टू somebody, and these are the things they teach you. And that was a very very informative session. And for us there was a 45 days session, and for others there was a 3 to 4 months training. And जो 3 और 4 months में ट्रेनिंग होती है वही वो 45 days में करा रहे थे. तो our day start at 6 and our day ends at 2, and we have 2 different sessions.
one for communication and other for technical. So they have provided 3 hours each day for communication part, you know, and you have to speak and you have to write and you have to compete with others. Hmm. That is the best part of it. And you know, there was an exam in which if you fail, you will have to repeat. You will not Okay. get salary, well, means the project salary part, the variable part, because once you join the project, then you will get the variable part. Mhm. So Hmm. हमें वहाँ पता चला कि ऐसा भी होता है. बट करेक्ट उनका करिकुलम, उनका टेक्निकल नॉलेज और वहाँ के टीचर्स इंडक्शन हुआ था. दे स्टार्टेड आर एनरोलिंग आर बैंक अकाउंट्स, passport, all the details should be there. And first day they said that you are here and you won't believe, once you leave from here you will know each and every day of it, you will remember us. But हमने बोला ठीक है. But at the last, when I summarize, I learned a lot from there. I was never uh, you know a public speaker, you can say, because इतनी गवर्नमेंट कॉलेज में इतने आपको मिलते ही नहीं है ना. रादर देन मतलब आप कुछ बच्चों में से हो, बट 95% of it, they are just studying, they are giving exams in the colleges. But there you have to speak in front of everybody, you have to present there, and you have to write emails, right? Hmm. So that was the first, you know, once you come out of the college, हाँ रैगिंग वगैरह होती थी हमारे केस में. वी हैव ऑलरेडी अपराइट ourselves कि हम डरेंगे नहीं, बट to speak in front of everybody, and you don't have to speak in Hindi, and this is not our mother language, means English is not our mother tongue, right? So that was a very good experience for me at that time. Any questions Cool, so far? cool. नहीं No, no, नहीं, it's बढ़िया great, it's बढ़िया great. एकदम. ये नॉलेज मिली कि कैसे टीसीएस में जाके आप वो बच्चों को ग्रूम कर रहे हैं, Yes. मतलब न्यू कमर्स को, और बेस सेट कर रहे हैं, उनको अच्छे से सिखा रहे हैं. दैट्स ग्रेट नॉलेज. तो ये हमें नहीं पता था, हम तो सोचते थे टीसीएस एक ही. हाँ. मैं वर्ड नहीं यूज करूंगा वो वाला, टीसीएस विप्रो इन्फोसिस सब ऐसे ही है. बट आई थिंक अच्छा पॉइंट रेस करा कि 45 डेज की ट्रेनिंग थी, 3 से 4 महीने की ट्रेनिंग थी, बोथ कम्युनिकेशन एंड टेक्निकल, विच इज अ Hmm. गुड थिंग. आई थिंक दे वर सेटिंग द फाउंडेशन फॉर यू गाइस कि हाँ भाई बंदा Yes. एक लेवल तक Correct. यू नो Hmm. अप टू स्पीड आ जाए कम्युनिकेशन में भी एंड टेक में भी. एंड आई थिंक जो तुमने बोला लाइक यू गाइस वर टेक्निकली गुड, जो भी वहां गए थे इंटरव्यू क्लियर करके, तो सब टेक्निकली ठीक ही होंगे. बट एक क्या होता है कि यू हैव टू टेल इट टू समवन कि अच्छा ये चल रहा है और ये करना है. बट हाउ यू वुड डू दैट until unless you cannot communicate effectively. Hmm. And presentation भी of course, प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, किसी को कुछ समझाना है, कुछ करना है, if the other person doesn't understand you, then what's the point, है ना? Yep, yep. So जिन लोगों की जैसे 45 डेज की ट्रेनिंग पूरी नहीं हो पाती थी, जो फेल कर गया, तो उसका क्या होता था? मतलब आर दे There रिजेक्टेड? is one guy actually, and he's from Bihar, and Bihar people from our college also, they are very good at technical, but if you say कि you have to express yourself in English, हम्म. so उनका ये है कि why should I do? I'm good at my studies and मैं college और मैं यहाँ पे भी आ गया हूँ. I clear all the levels. So and for them to get out of their comfort zone is another challenge. So he was already there for last 3 months, and we joined. So he was अच्छा. already serving the back in English, in communication. Wow. He did his technical at one go, but also he did the latter part, because in communication also there are two parts. One is speaking, one is writing. Hmm. So writing also he has done, but he is stuck at Speaking. the communication part. So I mean, like, are they like उन लोगों को क्या they are allowed to give as many back on this, or like एक time frame Yeah. होता है? Yeah. So no. Uh, in TCS we have this, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है ऐसे कि they give a chance to somebody, to prepare ourselves and get on with it. मतलब उसको 3 महीने हो चुके थे, 45 दिन भी हमारे साथ रहा हो, उसके बाद हुआ था उसका. But Wow. he has given various exams, and teacher was like, मतलब उस समय उसको टीचर उसको 1-on-1 था कि she is giving the assignments in his WhatsApp or phone. You have to record yourself first,
and then you can present it to others. So and means वो इतना level तक आते हैं. And at last he joined TCS Kolkata after some time. नाइस नाइस. सो आपकी जर्नी फिर टीसीएस के बाद जॉन डियर तक, हाउ डिड यू रीच देयर लाइक एट योर करंट पोजीशन? अभी तक मैंने कोडिंग नहीं करी थी, मतलब उस लेवल की नहीं करी जिस कि मैं मतलब आई एम प्राउड ऑफ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. मतलब हाँ, असाइनमेंट कर लिया, टेक्निकल में गुड है, एंड उन्होंने दिया, सीखा किसी से और कर लिया. क्योंकि इंजीनियर्स क्या रहता है कि एक रात पहले करो और परफॉर्म अच्छे कर लेते हैं, मतलब ऐसा कर लेते हैं पास हो जाए है ना, तो वो कर लेते थे. देन आई मतलब मेरे को बेस लोकेशन होती है, फिर यू हैव टू चूज योर बेस लोकेशन, एंड आई डोंट वांट टू बी इन एनसीआर बिकॉज आई वांटेड टू आई ऑलरेडी बीन इन मतलब मैं केरला तो था ही, तो आई वाज लाइक घूमते अभी क्योंकि नए नए इंडिपेंडेंट हुए थे ना आप, नया नया पैसा आने लगा था आपको, एंड फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली इफ यू आर गेटिंग द मनी and also getting the location like Kerala so you are already spending the vacation, the holidays, you know. So I chose Pune first, and then Nagpur, and then Hyderabad. Then I got my first preference as Pune. Then we joined here. So what happens is there are many projects, and in our competency what we choose and what we are good at, so we have assigned particular HR. Okay, we have to report them. So every day we have to report them around 10 to 12 between, and if she has the project or he has the project, then he said you have to come at this time and at this star. So and some people used to spend 3 to 4 months in bench, means come daily, meet him or her, and then get allocated. But in our case we arrive at Pune around Wednesday, and we got our project on Friday, and then we joined on Monday. So हमको इतना leisure नहीं मिला, but we are lucky that we got the project, because वहाँ पे क्या होता है कि TCS भी तक भी ठीक था, you are on your own, मतलब आप कॉलेज से आए हो एंड नई नई जॉब लगी है. बट जब आप टेक्निकल सेंटर ज्वाइन करते हो ना, एंड TCS और इन्फोसिस जैसे बड़े, तो इट्स लाइक भीड़ आ गई. उसके बाद आपका वजूद क्या हो जाता है कि आप भीड़ में एक बंदा हो, और कौन कितना कमा रहा है, कौन कितने एक्सपीरियंस है, कोई पता नहीं है. सो यार नोबडी. Nice, nice. So your current project is through TCS? नो. सो Okay. TCS में फिर ज्वाइन किया. देन हमको प्रोजेक्ट, मेरे को फर्स्ट प्रोजेक्ट मेरा अच्छे उसमें किस्मत भी काम करी कि मेरे को जो प्रोजेक्ट मिला वो स्टार्ट हो रहा था, एंड देयर वाज अ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट. So it was a starting of a project, and we मतलब हमारा जो client था वो Nissan था, and we were working on a product where nowadays people use their car into the telematics control unit. जो भी ADAS का फीचर्स आप लोग अब यूज़ करते हैं, we started from 2016 then. Nice. Okay. At that point of time there was मतलब Nissan था जो assemble, see OEMs they only assemble thing. They give different project to different tier 1 suppliers. So हमारा जो supplier था वो Continental था, उनका जो supplier था, and they will give the English requirement, and they means they develop the product and they deliver it to them. And our work is to हमने POC करना था. Then can we develop some software, because we don't know what in this hardware is, मतलब उसमें है क्या, उसमें सॉफ्टवेयर में लिखा गया है. हमें पता है कि इंग्लिश रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे ये होता है, बट क्यों होता है, कैसे होता है, वो नहीं पता था हमें. बट आपको ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार करना है ताकि वो उसको टेस्ट करता है, मतलब टेस्टर उसको एज ऑटोमेशन के लिए, और मतलब रादर देन गोइंग मैनुअल राइट केसेस, it should be a software, so should be a UI that that can test those hardware. And from that point onwards we develop software in loop testing, in which we have some UI and the backend, and which will give you UI to the user, means the tester, or the unit testing for the developer, that he or she can test their software by connecting it with them, with the hardware. So we were working on that prototype, and we have successfully developed those at Okay, interesting. Nice, nice.
So what's your current tech stack? What you are working on right now? या हाँ, सो तब तक भी मैंने कोडिंग स्टार्ट नहीं करी थी, मेरे को प्रोजेक्ट मिला था, ठीक है, एंड आई वाज फ्रॉम जावा, मतलब मेरे को जावा सी प्लस प्लस ये सब का था। देन Mhm. टी सी एस में मेरे को सी शार्प का प्रोजेक्ट मिला, बिकॉज इफ़ यू हैव टू डेवलप यू आई एंड एज वेल एज Hmm. you know the backend scalable, the adaptable, the reusable language is C sharp, and the easiest part also, because in Java there are not many, you know, they it can be used in banking sector where the security would be, you know, concerned, but we are not checking the security here, we used to check the hardware, and Hmm. Hmm. तब हमने C sharp, then I got then I met one of my, you know, mentor, you can say, and there was a lead, he was a leader, and I'm always, मतलब मेरे को हमेशा ऐसा क्यूरियस था कि भले ही मेरे को कंप्यूटर नहीं आती थी या फिर मैं कोडिंग नहीं जानता था, बट आई वॉज मोर इन टू यू नो द एल्गोरिदम पार्ट, कि मेरे को ये करना है, एंड आई वॉज गुड एट इट। मतलब मेरे जो जब आपके कॉलेज टाइम पे भी जो वो रहते हैं सब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल Hmm. डेटा एल्गोरिदम एंड यू नो कॉम्प्लेक्सिटीज़, ये सब उसमें बहुत इंटरेस्ट था मेरा, एंड यू नो आई यूज टू गेट द हायर मार्क्स, so Hmm. logically we are good, and then how to apply our logics, our, you know, technical knowledge, and जो हमें expertise थी कि एक चीज़ दी है तुम्हें, उसमें मेहनत करो, उसको आउटपुट दो। हम इसमें गुड थे, इसमें अच्छे थे, बट हमें सिंटेक्स का यूज़ करना था, उसको हमें ऐसा बनाना था ताकि people start using it, our product, तो Hmm. पीपल स्टार्ट यूजिंग इट, कि मेरे काम से किसी को, यू नो, एंड प्रोडक्ट को किसी को मतलब वो बेनिफिट करे, दैट आई वांटेड टू डू। मतलब मैकेनिकल मेरा यही था पर्पस, कि कुछ मैं ऐसी मशीन कुछ ऐसा बनाऊं ताकि किसी को मेरे काम से फ़ायदा हो, rather than going into, you know, any sector, any other than private, then, you know, गवर्नमेंट सेक्टर और किसी में जाओ, सब वहाँ पे यही बोलते कि वो ये खाएगा, वो ये ऐसे खाएगा, बट फ़ायदा किसको मिलेगा? So I wanted to do, you know, that kind of thing. So then, and in our जिस बैच में मैं था, सीनियर जूनियर, you know, रिलेशनशिप होती है, where you used to have, you know, some ethics to and respects to your senior. आप टीचर को इतनी रिस्पेक्ट नहीं दोगे, बट आप अपने सीनियर्स को बहुत रिस्पेक्ट करोगे, and ये चीज़ आती थी हम लोगों को। सिमिलरली हमने लीडर के साथ भी अपने वैसे रिलेशनशिप बनाए, उन्होंने मेरे को लॉजिकल चीज़ें सिखाएं कि ऐसा ऐसा कर, यू हैव टू। सो वन पॉइंट ही सेड कि पता तेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर की एक खास बात, तू कब बनेगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर? मैंने कहा बताओ। कह रहा है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व ना करना पहले दिन, उस प्रॉब्लम को अपने घर ले जाना, सोना, और अगले दिन उसी पे काम करना और सॉल्व करना। जब तक तूने ऐसा नहीं किया तब तक से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ही नहीं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग हम मेरे उसमें लाइफ में तब इजी हो गई, मैं डरता नहीं था कि मेरे ये प्रॉब्लम तो मेरे से सॉल्व हो गया ही नहीं। मेरे को पता था कि मैं घर जाऊंगा, उसको प्रॉब्लम में को लेके जाऊंगा, मैं रात भर सोचूंगा उसके बारे में, किसी को भी नहीं पता चलेगा कि मैं उसको सोच रहा हूँ, मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ, अगले दिन मैं उसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँगा। और दिस इज द क्रक्स ऑफ इट, दिस इज द क्रक्स ऑफ इट इन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स लाइफ। Nice. Nice. So currently you are working on C Sharp, right? यस। Okay. And And any, और any क्या टेक स्टैक है? और क्या है हाँ, इसके अलावा? देन आई मूव टू इनटू डिफरेंट, जो हम टीसीयू मतलब टेलीमेट्रिक्स कंट्रोल यूनिट को टेस्ट करते थे, उसके सॉफ्टवेयर बनाते थे। देन आई गॉट अ चांस टू वर्क ऑन दोस टीसीयू, मतलब उनको एम्बेडेड सी। सो आई गॉट इनटू चांस, आई क्लियर द इंटरव्यू, सेकेंड कंपनी वाज मैग्नेटी मेरिली, एंड नाउ इट इज used to go with Merrily. Then I spent there 3 years developing those software, those hardwares, and you know, and impacting various life. मतलब मैंने आप विटारा ब्रेजा एंड पोलो, पोर्शे, मजराटी, कुशाक, सो इन सब में मैंने सॉफ्टवेयर लिखा है। सो जो भी आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखते हैं, उसका जो यूआई आता है, जब आप वेलकम स्क्रीन होती है, उससे लेके उसके फीचर्स तक, सो वी यूज टू वर्क ऑन दैट। सो वहाँ पे मेरा टेक स्टैक चेंज हो गया एकदम, मतलब आप सी शार्प से एकदम एम्बेडेड सी में आ गए, जहाँ पे आपको रन टाइम एनवायरनमेंट, मतलब आपके पास विंडोज ही नहीं है, यू हैव टू वर्क ऑन द आर्टस रन टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड वी आर पीपल से अबाउट मिली सेकेंड्स, मतलब आप सेकेंड्स में नहीं यूज़ कर सकते, बिकॉज अगर आपकी कार हिट हुई तो सबसे पहला एयर बैग खुलना चाहिए, वो दैट इज़ अ मिली सेकेंड, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। अगर उसमें हल्की सी भी देर हुई, पीपल विल डाई।
Hmm. So that complexity I worked on, and that in that organization. Interesting. ठीक मैम, ग्रेट। बढ़िया बढ़िया। सो अभी भी वही चल रहा है सेम। आई थिंक जॉन डेरा इज अ डिफरेंट मेकिंग इंजन्स एंड हार्डवेयर। सो अभी क्या सिमिलर टेक स्टैक है और थोड़ा सा फिर वापस मैं उसी में फटाफट आ से। गया सी हाँ। शार्प में। एंड अच्छा। मेरी नॉलेज उसमें तो थी एम्बेडेड में, जहाँ पे हम्म। हार्डवेयर करते थे। अभी अभी भी मतलब हम सिर्फ इंजन ही नहीं, जॉन डियर जब मैं आया तब मेरे को पता चला कि ये लोग सब चीज़ इन बिल्ड करने लग गए, इन हाउस करने लग गए। मतलब पहले दे यूज टू असेंबल द थिंग्स लाइक अदर ओ हम्म। एम्स, बट दे आर नाउ लीडर्स इन देयर टेक स्टैक एज वेल। John Deere is not a Hmm. manufacturing company. They said John Deere is tech company, like Tesla is tech company, like Hmm. Facebook or हम्म। X, Twitter is a tech company. So they refer themselves as tech company. So we have Hmm. our own tech stack, and we have our own engines, we have our own manufacturing units, and yeah. So I'm working on C sharp only, but with both end, because we delve into embedded part as well, because I used to work on that, and Hmm. to get the feature out of them, because जब आप OEMs में आते हो तो आपके पास टीयर वन नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज योर रिक्वायरमेंट वहाँ पे क्या होता है कि जोल डाउन होती है, हम्म। सिस्टम आती है, Hmm. फीचर लेवल आती है, और Hmm. सबसे पहले जो इंग्लिश नॉर्मल लैंग्वेज होती है, तो हमें नॉर्मल लैंग्वेज ही आती है, उससे हमें जोल डाउन करना पड़ता है, घुसना पड़ता है अंदर फीचर लेवल तक। एंड फीचर Hmm. लेवल के बाद हमको करना पड़ता है कि ये फीचर तो ऑलरेडी है, बट इसको हम टेस्ट कैसे करेंगे, हाउ वी कैन टेस्ट द एक्चुएटर्स एंड सेंसर्स। एंड Hmm. अभी अभी आप जाओगे तो दे जॉन डियर इज ऑल्सो नोन एज टेस्ला ऑफ एग्रीकल्चर। सो उनके जो टेक्स्ट है, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, दे आर वेरी वेरी, Hmm. अगर आप एक कार को बोलोगे वो पैसेंजर कार है, आपको बस एक जगह से उठा के दूसरी जगह करती है, बट दे Hmm. आर ऑन फील्ड, दे आर एक्चुअली हार्वेस्टिंग, दे आर टिलिंग एंड प्लांटिंग, स्प्रेइंग। स्प्रे मतलब सिर्फ आपको क्रॉप को नहीं करना है, सिर्फ आपको बग को करना है। Hmm. Yep. I वास्ट हमारा think वो है। John Deere is like very famous in US for like in their agriculture business, right? And like they are like the top one manufacturing companies यस, in their machinery. Cool, cool. they have a monopoly, you can say it loud, they have a monopoly in the US region, in the north and south America.